Can you hear me now? Is there voice now? Mosby, can you hear me? So we are just waiting for Mosby to join. I'm super excited to begin this journey. This year is all about, new beginnings, soulful conversations, and we are, creating this safe space to, connect with some meaningful connections, to take you on your healing journey. As a wellness coach and therapist, my goal is to create a safe space. Uh, okay, Mosmi. If okay, unable to join. So I'm just trying to create this space platform for everyone. Hi, Mosmi. Mosmi is here. Hi, Bhumi. How are you? Namaste. Namaste. Hari Am I Om. audible? Yes, you are. Good. So I would just go ahead and introduce Mosmi as she has joined in. Mosmi is a childbirth educator, Garbha Sanskar coach. She is a prenatal and postnatal coach and an energetic mom of three kids. Her own healing journey is truly inspiring. And together today, she's also a Reiki healer. And today, together, we are here to explore, how someone can start mindful parenting, wellness during pregnancy, what Garbha Sanskar is, and just to how do you take your first step towards parenting Thank or you, thinking of first of all. becoming a parent. Yes, thank you, Bhumi, first of all, for all the wonderful words you shared for me. Yes, मेरी अगर parenting journey की बात करूँ, Hindi English will be fine, right? Yeah, Yes. दोनों मिक्स So, करते हैं, कोई बात नहीं. yes. So, if I'll talk about my own journey, I delivered my first child when I was 20 years old. And that was you can say without any knowledge or without prior awareness about the parenting or the how the process will be. बच्चे को बड़ा कैसे करना है सब बोलते जाएंगे and you will raise the child. So that kind of thought process was there at that time. But once I delivered my second and the third baby, now I'm very much aware and you can say still learning lots of things. But yes, still not the same as I was when I delivered my first child. So I always request, each and every couple, whosoever are planning, because see, the biggest advice anyone can give is शादी की है बच्चे कर लो एक साल हो गया बच्चे कर लो 2 साल हो गए बच्चे कर लो but you have to understand one thing if you both are in a one state or the equal mindset then only plan the baby second advice I can say from my own experience and with my knowledge is okay if you both don't have that kind of rapport or the connection then don't think कि यार बच्चा आ जाने से सब सेटल हो जाएंगे व्हाट्स ये बहुत कॉमन हमारा फ्रेज होता है बाय इन लॉज और हमारे पेरेंट्स खुद के भी हमारे फ्रेंड्स भी यही बोलेंगे कि कोई नहीं इफ यू बोथ हैव एनी कॉम्प्लिकेशन और इश्यूज यू हैव योर बेबी एंड यू बोथ विल बी सेटल्ड सब सेटल हो जाएगा झगड़े हो जाए सॉल्व हो जाएंगे हाँ बट दे डोंट रियलाइज कि वो जो झगड़े हैं वो बच्चे को भी अब पास ऑन कर रहे हो वो झगड़े तो बंद नहीं होने वाले हैं and that trauma that the parent is carrying is going to go to the child also 100% ट्रू बिकॉज क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ गर्भ संस्कार अगर थोड़ा सा हम पीछे जाके ट्रेडिशनल वैल्यू की या संस्कार की बात करें तो उसमें सबसे पहला हमारे जो सनातन धर्म में 16 मेजर संस्कार जिसको बताए गए हैं उसके बाद बहुत सारे उसके अलग अलग पार्ट्स भी है बट जो 16 मेजर संस्कार है उसमें सबसे पहला संस्कार आता है गर्भाधान संस्कार उसका मतलब ही ये होता है कि when the couple is ready to have the baby they need to perform some rituals they need to do some kind of activities to make them ready physically mentally emotionally even spiritually it's not a kind of a thing where you get physical and you have the baby
It's So a it's kind of, not that it is something new when there are people who come and say कि भाई planning क्या हमारे जमाने में तो planning नहीं था, but it is not new, it is coming from generations. yes, ये जो 16 संस्कार हैं हमारे, that itself says that if there is something called गर्भाधान संस्कार, that means planning is coming from generations, that yes. it has always been there in our culture. ऑफ कोर्स डेफिनेटली, जब एक कपल ऐसा डिसाइड करता है कि नाउ वी आर फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली रेडी, देन दे हैव टू प्लान फॉर द बेबी. जैसे इफ वी वांट इंश्योरेंस और वी वांट द मेडिक्लेम, वी गॉट टू नो अबाउट ऑल द कंपनीज के बारे में हम सर्च करेंगे, सब चीजें देखेंगे क्या हो रहा है, कौन सी कंपनी अच्छा बेनिफिट दे रही है. सेम वेज हमारे शास्त्र की ही बात करती हूँ कि ये कोई नया नहीं है जो मैं बता रही हूँ. ये सब शास्त्र में लिखा गया है कि पहली वाली बात, बिफोर यू प्लान द बेबी, हैव योर फिजिकल बॉडी क्लियर एंड क्लीन. बिकॉज जैसे पंचकर्मा आपने अगर सुना हो या हमारी ऑडियंस है जिसको पता हो, तो पंचकर्मा करने से हमारी पूरी बॉडी जो है वो क्लीन हो जाती है डिटॉक्स विद हो द जाएगी। बॉडी. हाँ, डिटॉक्स हो जाती है. जैसे हम जो खेती करते हैं उनको पता होगा कि फर्स्ट वी क्लीन द लैंड, देन वी हैव वी डिसाइड द गुड seeds, and then we provide a good environment, good fertilizer, sunlight, water, then only we will have a nice अच्छी वाली फसल जो है वो तब उगती है. So if we want that kind of baby जो हमें एग्जैक्ट चाहिए, जो हमारी फैमिली वैल्यूज को आगे बढ़ाए, तो वी नीड टू स्टार्ट बिफोर इवन वी प्लान. सो इट्स नॉट के हाँ जैसे यार हम किसी इवन एक वेकेशन पे जाते हैं या एक घर लेते हैं या कुछ भी होता है, तो वी प्लान सो मच, डेफिनेटली. देन व्हाई नॉट प्लान फॉर अ चाइल्ड? आई मीन इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम एक अगर हम घर खरीद रहे हैं तो हम विजुअलाइज करते हैं कि हमको ऐसा घर चाहिए या हम ऐसी जगह पे घूमने जाएं. तो इफ वी आर थिंकिंग फॉर द स्मॉलेस्ट थिंग, हैविंग अ चाइल्ड इज कितनी बड़ी बात है ये इट्स तो. अ तो फिर उसके लिए तो lifetime, you कितना can ज्यादा say. इम्पोर्टेंट है कि प्लान करें हम. Yes, you can say it's a lifetime person who will travel with you almost. अगर मैं आपको सिंपल सा कैलकुलेशन पूछूं भूमि कि व्हाट्स द टोटल ऑफ 9 + 9, व्हाट विल बी योर आंसर? 18. ये हमारी मैथमेटिक्स में फिट बैठता है. बट इफ वी वांट 99 years ऑफ गुड लाइफ फॉर अवर बेबी, we need to plan 9 + 9 + 9. What's that? It's a 27 month, right? Oh. 9 months before you plan the baby, you need to detox your body, you need to be spiritually active, you need to be mentally stable, you have to prepare yourself for the financial. because आज के दिन में सी कितनी भी अच्छी बातें करो, फैंसी बातें करो, बट हमें पता है कि एवरीथिंग नीड्स मनी ओनली. सो Yeah, 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 yeah. सब कुछ महंगा है. yes, One visit to doctor yes, costs a that's lot. So why every even aspect needs to be. ऐसा नहीं है कि भाई तुम, and at the same time it's not that you पैसे है तो सब कुछ है, yes, कि भाई पैसे है तो बच्चा प्लान कर सकते हो. It is equally important कि mental आप awareness. मेंटली अपने आप को पहले हील करो. You are in a good emotional state because like the female body goes through so much in Yes, the postnatal and phase or prenatal phase, in the pregnancy. yes, So much of hormonal changes, body changes, so much. And the husband, obviously, I'm sure, because he is there to support, तो उनका भी बहुत सारा changes हो रहा है अपनी वाइफ को देख के. तो so I कितना have प्रिपेयर a करना पड़ता है. beautiful phrase here, to just sorry to No. interrupt, but here is the beautiful sentence है अच्छा सा जो मैंने पढ़ा था कहीं पे, कि when you have a baby inside your womb, मदर जो है उसको अपनी बॉडी में नर्चर करती है अपने थॉट्स के थ्रू, बट एक फादर जो है वो उसके ब्रेन में भी बेबी जो है वो बड़ा हो रहा है. Showing the wife who is having a good baby bump, showing all the वो जो सोनोग्राफी वगैरह देखते हैं उनके साथ विजिट पे जाते हैं. So it's not only the mother who is carrying the baby, but yes, Both definitely of in the them. brain, husband is also carrying the baby, he is equally excited. And I here also want to add one thing, कि आज की बहुत हार्ड एंड फास्ट लाइफ में एक चीज ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द फादर्स आर फॉरगेटिंग, और फादर टू बी आर फॉरगेटिंग, इज टेकिंग केयर ऑफ द मदर. बिकॉज हम आगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात करेंगे, बट अभी ये जो बात चल रही है उसमें कि प्रेग्नेंट होना मतलब वुमेन का काम,
प्रेगनेंसी के लिए सारी प्लानिंग, वुमेन की प्लानिंग, उसका बॉडी को देखो, उसके विटामिन्स का ध्यान रखो, उसके मिनरल्स का ध्यान रखो, उसको फॉलिक एसिड दो, बट व्हाट अबाउट द फादर? फादर, यस, यस, क्योंकि तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मदर की बॉडी के ही हॉर्मोन्स हैं वो, इट इज डेफिनेटली, इक्वल पार्टनर्स है ना दोनों हस्बैंड वाइफ। definitely it's just the mother's body who is carrying the baby, but इक्वली वो मदर की बॉडी जो केयर करता है बेबी की, नर्चर करता है 9 मंथ्स तक, उसको हाँ, भी फादर की जरूरत है। एंड जितना डिटॉक्स जो बॉडी का मदर की जरूरत है, उतना ही सेम काइंड ऑफ डिटॉक्स फादर को भी जरूरत होती है, बिकॉज उसके स्पर्म से ही बेबी बनने वाला है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की हम लाइफस्टाइल की बात करें, इट्स लाइक जंक आ ही जाता है, हम चाहे या ना चाहे। और जो हम थोड़ा अच्छी बहुत, चीजें, क्योंकि कितना अडल्ट्रेशन है, आप रोक रोक के भी कितना रोकोगे। यस, एंड इवन जो हम हेल्दी खा रहे हैं, चाहे हम फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, मिल्क की बात करें, मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें, दैट आर ऑल्सो नॉट अ और 100% ऑर्गेनिक, वी सब कैन से। सब सब चीजों में अडल्ट्रेशन है, कितना रोक Yes, पाओगे आप। yes. So before planning, I always, advise and counseling people to have at least 9 months of the time where you will have a brahmacharya, where you will clean your body, detox your body, you will be ready mentally, you will be making your, family ready for the new beginning. Because again, जितना इम्पोर्टेंट पार्ट हस्बैंड का होता है, सेम नहीं पर उतना ही इक्वल जो पार्टिसिपेशन होता है वो फैमिली का भी होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम कपल जो है, अगर उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग भी है, देन ऑल्सो फैमिली का अगर एनवायरमेंट सही नहीं है, तो अगेन आने वाला बेबी डेफिनेटली सफर करेगा, बिकॉज आप वही एनवायरमेंट में हो, वाइब्स की जो हम बात करते हैं। अग्री अग्री। तो डेफिनेटली, कितना इम्पोर्टेंट है कि हम प्लान करें, और ऐसा नहीं है कि एक एस्पेक्ट पे प्लान प्लान करना है। एंड ये जो एपिजेनेटिक्स का जो नया नॉलेज आ रहा है अभी, पहले तक तो इतने साल तक तो वी वर सेइंग कि भाई इट वाज ओनली जीन्स एंड डीएनए और वो सब, लेकिन द नॉलेज ऑफ एपिजेनेटिक्स, यू द ट्रॉमा और द इमोशंस दैट आर और द फीलिंग्स दैट आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम जनरेशंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पेरेंट्स जो बच्चे प्लान कर रहे हैं उनका, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके यस, ग्रैंड पेरेंट्स, उनका अगर सब ट्रॉमा इसमें, तो अभी वी वर्क। यस, तो ये जो लाइन है वो यहीं से कट हो जाएगा कि यहाँ से आगे हम ट्रांसफर नहीं करें वो, और इसको डेफिनेटली, यहीं पे डेफिनेटली, एंड करें। एक जो साइकिल चल रहा है जो ट्रॉमा का इतने जनरेशन से, उसको कट करके यू वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड देन यू स्टेप अहेड एंड प्लान फॉर द चाइल्ड। 100% ट्रू। इसमें अगर हम, आपने जैसे जनरेशन की बात की, तो अगर फादर साइड के जनरेशन की बात करें, तो 7 जनरेशन फ्रॉम द फादर पीछे वाले, और मदर के 5 जनरेशन, उन दोनों के अगर कोई भी ट्रॉमास, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम, कोई भी मेंटल प्रॉब्लम, कोई भी, जैसे हेरिडिटी में हमें सारी अच्छी चीजें मिलती है ना, तो वी आर ऑल्सो गेटिंग ऑल दोज ट्रॉमास, टेंट्रम्स, ऑल द नेचर्स बिहेवियर, वो सारी चीजें भी हमारी, वो 7 साइड ऑफ द फादर जनरेशन, एंड हमारी मदर के जो है 5 जनरेशन। आपने भी सुना होगा ना, वो बच्चा उसके दादा जैसा लगता है, नाना जैसा लगता है, इसकी ये हैबिट जो है ना उसकी परदादी जैसी है। तो वो कहाँ से आती है? वो इसी वजह से आती है कि 7 जनरेशन पीछे फादर की और 5 जनरेशन मदर की। सो हियर ऑल्सो आई वॉन्टेड टू एड वन थिंग, व्हेन आई डिलीवर माई फर्स्ट चाइल्ड, just sharing my own experience. So when I delivered my first, my youngest daughter, so eldest daughter, so उसमें क्या हुआ था कि I was not aware, I was very much focused, and you can say मैं जो पढ़ाकू kind of, I was a girl, so I was very much busy with my, own, I was studying in TY and giving exam and entrance exam for the MBA, and all those things were, there. So my friends were, making laugh of me, like कि अभी आपका जो बच्चा आएगा ना वो तो सीधा एमबीए ही करेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव लर्न ऑल द थिंग्स अबाउट द टीवाई इन योर होम इटसेल्फ, सो बेबी ने तो वो सब सीख ही लिया है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। द ट्रॉमा व्हिच आई वाज कैरिंग एट दैट टाइम, slowly and gradually I worked on that, and now, after having So, lots of therapies, just for the audience, I'm asking. So, were you prepared for your child, or was it an unplanned yes, child? it was a, like you can say, I planned it, but it was not expected to have it at 6 7 months Or maybe before.
you had not done your pre-work. Yes, I was not aware about anything about the Garbh Sanskar or the planning phase. Yes, we Hmm. wanted the child, Hmm. but at least we may have 6, 7 more months Hmm. according to our doctor's advice. Hmm. So on the same month I got pregnant, and then also I felt ke chalo theek hai, we will be able to manage. But yes, it's not easy, Hmm. स्पेशली अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, Hmm. आप अपनी फैमिली से बहुत दूर रह रहे हो, सो इट्स नॉट लाइक के you will be Hmm. able to manage. The one child, only a one child will need whole your attention, physically, mentally, emotionally, financially, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है. तो Hmm. प्लीज अपने प्लीज दिमाग को पहले से अच्छे से So रेडी करो, that was, एंड so देन that was ओनली about your first child journey. So what about this the other two ones? फिर तो आपने यस अपना self work किया, you यस got educated, and what is the difference you see now then later? few difference, or you can say the each child is having all the plus and minuses. I'm not sharing anything which is not good, but Yeah, one मतलब thing I आपकी खुद की journey to yes, have, first do and your most pregnancy, your important thing, postnatal. if you are ready for the child, if Hmm. you have that kind of mind okay, you will be able to have this baby. You are designing the baby during the pregnancy, you do lots of mental work, you do lots of spiritual work, you visualize the baby, you try to connect with the baby throughout the pregnancy. Hmm. then वो बच्चा जो है वो आपसे उसका connection, it's like you can say wonder. मेरे Hmm. सन में और मेरी डॉटर में सिर्फ ये एक ही फर्क है कि विदाउट सेइंग अ वर्ड Hmm. my son can understand each and every line, whatever Hmm. going on in my mind. So whenever Hmm. they have that kind of fights with sibling Hmm. kind of fight, so Hmm. I need to ask my daughter कि please don't do Hmm. that. And my Hmm. my son just मैं उसको देखूंगी and he will be understand कि now mama is saying no means no. So Hmm. that kind of connection. Second thing, उनके फिजिकल यू कैन से द डाइजेशन में, उनके मदर मिल्क प्रोडक्शन में, बिकॉज फर्स्ट टाइम आई वाज नॉट एबल टू फीड माय daughter. At Doctor. least only hardly I can able to produce the milk for 3 to 4 months, and then I have to I was not able to produce it, so I Shift. have to yes, अच्छा. I have to completely on the bottle feed. Hmm. And वो भी उस टाइम पे before 12 years there was a no formula or kind of thing. Hmm. So I just directly give the half of milk and the water. So again digestion, she is still suffering even Hmm. after 12 years. So अच्छा. compared to that, physical health भी बच्चों की बहुत impact करती है if you are करती है. not ready for the baby. Hmm. So that's what Hmm. I can say So from my when journey. you are talking about so much of planning, तो जैसे आजकल there are people who are facing a lot of problems in conceiving itself. तो क्या लगता है, मतलब कितने लोग हम सुनते हैं कि आईवीएफ के लिए जाते हैं या मेडिकेशंस पे, तो कितना जरूरी है वो कि या तो डायरेक्टली वही फेज में चले जाना, ये क्यों हो रहा है ऐसे? व्हाट डू यू थिंक See, अबाउट दैट? अभी अगर हम बात करें तो एक तो हमारी जनरेशन जो है ना वो मिडल पे है, बहुत क्रिटिकल आई कैन से के जनरेशन, जहाँ की पीछे जनरेशन बहुत अलग थी, जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी या बहुत कम टेक्नोलॉजी, और हमारे बच्चे बहुत एडवांस. हम बीच एडवांस. की एक ऐसी जनरेशन है जो स्ट्रगल करेंगे टू मेक अवर. बिटवीन द टू. हाँ, वो हम हमारे पेरेंट्स को भी समझाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, सेम टाइम वी आर इवन स्ट्रगलिंग कि हम हमारे बच्चों को भी समझाए कि ये नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट इतनी भी ना करें, और हम हमारे पेरेंट्स को भी समझा रहे हैं कि आप भी टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा दूर रहो. सो आई वुड ऑलवेज से कि आज दोनों ही पेरेंट्स जो है वो वर्किंग है. डायरेक्टली आईवीएफ या कोई भी मेडिकल प्रोसीजर में जाने से पहले अपनी बॉडी के लिए आयुर्वेद की हेल्प लीजिए. एलोपैथी में ना जाके आप होम्योपैथी, आप बाकी की जो सारी नेचुरल प्रोसेसेस है नेचुरोपैथी में जाइए, आयुर्वेदा की हेल्प लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए. द बिगेस्ट मिस्टेक आई वुड से पीपल इज डूइंग इज, हाँ हमें प्लान करना है, हम बाहर कहीं रिसोर्ट में चले गए, हमें प्लान करना है, हम 7 डेज 8 डेज की हॉलीडेज पे चले गए, बट हमारे शास्त्रों में तो कौन से दिन पे कौन से कलर के कपड़ों में कौन से भगवान की प्रेयर करके आपको उस प्रोसेस में जाना है वो भी क्लियरली इट्स डिफाइंड. सो आपको वो गर्भाधान संस्कार, अगेन बैक टू द टॉपिक, कि गर्भाधान संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप दोनों का माइंड सेट जो होता है उस टाइम पे, उसकी ही वजह से आपका जो बेबी है उसका नेचर होता है. सेम अगर प्रहलाद की बात करें, हम सबको पता है कि प्रहलाद जो है वो राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ था. बट व्हेन द उनकी जो मदर है
वो और उनके फादर जब बेबी प्लान कर रहे थे, सो उनकी मदर जो है उन्होंने इंटेंशनली उनसे बुलवाया कि कौन भगवान नहीं है। सो वो हिरण्यकश्यप जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बिफोर दे एंटर इनटू द प्रोसेस, के विष्णु जो है वो भगवान नहीं है। तो उसने और उकसा के बोला कि कौन भगवान नहीं है। सो विष्णु भगवान नहीं है। क्यों उसने बुलवाया? बिकॉज शी वांट कि आने वाला बेबी जो है वो स्पिरिचुअल बने। और हम सबको पता है कि प्रहलाद जी जो है वो बड़े भक्त थे विष्णु के, राइट? सो ये प्रोसेस जो है वो बहुत मैटर करता है। इट्स, यू कैन से द स्पिरिचुअल काइंड ऑफ थिंग विच यू आर डूइंग फॉर द हैविंग अ वन न्यू सोल इन योर लाइफ। Also, apart from the physical and spiritual aspect, काफी मैंने मेरे काफी clients देखे हैं जो they have been having difficulties in conceiving and they go through therapy. और काफी सारे clients एक या दो थेरेपी सेशन से इतना सारा उनका ट्रॉमा हील हो जाता है या उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं कि they are conceiving naturally without any medication, anything, just Yes, so with one the help of aspect therapy. I is, mean, I would not say कि IVF पूरा गलत है, बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो लोग देयर कंसीव मेडिकल नहीं कर पा प्रॉब्लम है रहे, तो हाँ, हाँ ठीक जिनको है। एक्चुअली मेडिकल प्रॉब्लम है। पर आप एट द सेम टाइम आप सारे अपने एस्पेक्ट्स पे पहले काम कीजिए, योर फिजिकल यस, बॉडी, योर माइंड, योर ओन डेफिनेटली। जर्नी, हीलिंग और उसके जो बाद है, जाइए। यस, हीलिंग जो है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होती। अगर आप कोई भी काउंसलर के पास या गायनेक के पास जाओगे बिफोर हैविंग द बेबी, जब आप प्लानिंग फेज में जाते हो आपको क्या करेंगे? फॉलिक एसिड की मेडिसिन देंगे, आप दोनों की बहुत सारे रिपोर्ट्स करवाएंगे एंड दे विल बी शेयरिंग कि ये सब आप करो और ये 2-3 दिन लिख के देंगे एंड यू जस्ट ट्राई फॉर हैविंग अ बेबी। बट उसके डॉक्टर को भी आप मिलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसके पहले आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, अपनी जो सारी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर करो, सेटल करो, सॉर्ट आउट करो। आप दोनों बैठ के साथ में स्पिरिचुअली अवेकन जर्नी पे जाओ, आप दोनों मेडिटेट करो साथ में। आप दोनों के अगर कोई भी ट्रॉमास है तो जैसे आपने बताया कि थेरेपी की हेल्प लेना, बिकॉज अभी भी हम 2025 में भी फिजिकली अगर बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास इजीली चले जाते हैं। हाँ, हमें फीवर है, कोल्ड है, कफ है, हम एंटीबायोटिक्स ले लेंगे, हमें कोई शेम नहीं है। बट अगर मेरे दिमाग में कुछ स्टक है और मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना है, वो तो सबसे पहले, एक बहुत बड़ा टैबू है, हाँ, तो सबसे पहले तो मैं ये सोचूंगी अगर मैं मेरे हस्बैंड को बताऊंगी तो वो मुझे पागल तो नहीं पागल समझेगा। समझते हैं। हाँ, मेरे फैमिली वाले जो है वो ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि ये बहू पागल हो गई है या भाभी पागल हो गई है, राइट? सो हाँ। दैट काइंड और ऑफ एवरीथिंग। सैडनेस, एंगर, ये सारे इमोशंस का तो लोगों ने मतलब दे डोंट इवन अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, इस पे हमको यस, काम करना चाहिए। सैड फील कर रहे हो तो कहीं घूम के आ जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, पर क्या वो परमानेंट सोल्यूशन है? if I'll share उसके my लिए own journey for the same, I tried lots of therapies and it heals me from inside like a wonder. जब मेरा थर्ड बेबी आने वाला था तो उससे पहले जो EFT टेक्निक्स होती है, या तो हम अपने माइंड में से जो सारे चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्विक सिंपल सी अगर मैं मेरी जर्नी शेयर करूं तो आई वाज अ चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड। सो 5 ईयर की एज से ही मुझे लिखने का बहुत शौक है। और वो लिखने के शौक की वजह से ऐसा हुआ कि अभी एट द एज ऑफ 33 आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ द वे आई वॉन्टेड टू। या तो लोग जैसे ना मेरे हस्बैंड भी अच्छे से बहुत शेयर कर पाते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं वो अच्छे से सारी चीजें मेरे से शेयर कर पाते हैं, बट आई एम ऑलवेज विद माई पेन एंड डायरी, right? Then when I went for the therapy, I realized that there was some childhood trauma connected with that event, and from that event I started writing rather than sharing and expressing from my words. So I am very good in writing now. After therapy I feel very calm, settled, I am able to express myself. But हमें पता होना चाहिए कि हमें अगर लाइफ में कुछ रुकावट आ रही है, if we are stuck somewhere, then from where it comes, लाइक मुझे क्लोज स्पेस से बहुत डर लगता है, बट वो कहाँ से आया है वो तो आप सोचो, उस पे तो जानने की कोशिश करो, उस पे थोड़ा बहुत जो वर्क होता है वो करो। मैं नहीं बोली कि आप बड़े बड़े से लंबे लंबे से सेशंस के लिए जाओ, एटलीस्ट गो एंड मीट द काउंसलर, एटलीस्ट गो एंड मीट टू द थेरेपिस्ट, take at least 1 or 2 sessions so that you will be ready for the next phase. So that is very और important आई to have थिंक a therapy. ऐसा भी नहीं है कि थेरेपी कर लिया तो मतलब सब हो जाता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। Yes.
कि भाई यू डू योर सेल्फ वर्क ऑल्सो विथ थेरेपी। सिर्फ थेरेपी भी नहीं करना है, खुद का भी कुछ अलग अलग जो टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, जैसे ईएफटी आपने बताया, या जस्ट मेडिटेटिंग, या इफ यू आर नॉट इनटू मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, सो मेनी अदर टेक्निक्स, जस्ट टू do your continuous self work, because day to day we go through so many different What challenges. आई रियलाइज हियर इज आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे आपने बताया माइंडफुलनेस, हम माइंडफुल होते ही नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड बात कर रहा है, सब कॉन्शियस माइंड बहुत सारी चीजें चल रही है। हम हमारे बच्चों के तो साथ होते कहीं थे, और कीप ऑन घूम स्क्रोलिंग। रहा होगा, बच्चा क्या कर रहा है, क्या खाना खाना Yes, है, कहाँ घूमने yes, जाना है। yes. Even a girl who is expecting a baby, she also keep on scrolling. मेरे बच्चे के लिए ये लाना है, वो लाना है, but rather than just scrolling and worrying about the future, why not investing the time for the present? जब हम सबने आखिर सुना ही होगा कि 80% ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो वूम में ही हो जाता है। बाकी के 5 to 7 years में सिर्फ 20% हो जाता है, वो भी विद द हेल्प ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग you will be able to change something। जैसे yesterday only I heard about one incident कि एक बच्चा जो था 12-13 साल का, वो इतना एंगर में सारी चीजें फेंके ही जा रहा था। जब भी उसको गुस्सा आता है कुछ भी चीजें उठा के पटक देता था। तो उसके पेरेंट्स जो है वो काउंसलिंग के लिए गए एंड दे आस्क्ड दैट काउंसलर के व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विथ माय बेबी। ये ऐसा तो नहीं था, बहुत काम, बहुत अच्छा बच्चा है, हमारा घर का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, स्कूल में जाता है वहां पे भी अच्छा बच्चा है। देन दे गो डीप 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 के जहाँ पे वो उनका सारी हिस्ट्री ले रहे हैं, फिर पता चला कि द लेडी व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, शी वाज कैप्ट इन अ वन रूम, जो लॉक करके रखते थे उसके जो एक्स हस्बैंड थे वो। और उसको प्रेगनेंसी में हमेशा यही ख्याल आता था कि मैं सारी चीजें जितनी भी है वो तोड़ दूं ताकि कोई आसपास से आए एंड मुझे हेल्प करे। सो द सेम काइंड ऑफ ट्रॉमा फ्रॉम द वूम शी इज कैरिंग, वो उसके बच्चे को सेम 12 साल के बाद ही गॉट ट्रिगर्ड विद द सेम ट्रॉमा। सो ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ ना कुछ, मतलब देर आर थिंग्स दैट कीप ऑन बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, एंड देन फिर एक दिन तो वो ब्लास्ट होने ही वाला है। और यस। आपका सो सबकॉन्शियस माइंड तो रिलेट कर लेता है फिर चीजें। हमारी पास्ट की इतनी सारी मेमोरीज होती है, पास्ट लाइफ की भी, तो ये वूम वाली मेमोरी तो बहुत करंट वी कैन बहुत से, स्ट्रांग होती है। आई हैव राइट। सीन क्लाइंट्स जिनकी वूम मेमोरीज उनको याद है, एंड हाउ वी हैव वर्कड अपॉन इट एंड हाउ इट चेंजेस। तो ऐसे केसेस में you staying, like now you are talking about pregnancy, तो how important it is to have some good habits during pregnancy। सी हैबिट्स की बात करें, सबसे पहला जब तो हम ये बात करते हैं कि माइंडफुल। भाई अच्छी बुक पढ़ लो, या स्पिरिचुअल बुक पढ़ लो, या वॉक कर लो, बट और भी चीजें होती है, तो जनरल वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जनरली अगर बुक पढ़ने की बात करें, तो अगर मैं मेरी ही बात करूं, आई एम वेरी गुड इन लिसनिंग, सो आई ऑलवेज लिसन टू द बुक्स। पीपल हु आर नॉट गुड इन रीडिंग, वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आजकल अलेक्सा है, गूगल डिवाइसेस है, आप उनसे अच्छी सी स्टोरी सुनिए। सुनना भी एक अच्छी बात होता है। मेडिकल साइंस ये कहता है कि बच्चा जो है वो 4th मंथ से सुन पाता है मम्मी के वुम में से ही। बट हमारा स्पिरिचुअल साइंस, हमारा जो शास्त्र है वो बोलते हैं कि द मोमेंट यू गॉट द प्रेग्नेंट, उसके 3 महीने पहले से ही आपके आसपास जो सारी चीजें हो रहा है और हो रही है, जो भी घर में एनवायरनमेंट है, आपके प्लानिंग के टाइम पे आपकी जो भी सिचुएशन थी, वो सारी चीजें भी बेबी जो है वो उसको भी कैप्चर करके बॉर्न होता है। सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप माइंडफुल रहिए। माइंडफुल का मतलब है जो भी काम कर रहे हैं वो आप अच्छे से करिए। आपका आहार अच्छा होना चाहिए, आपकी डाइट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब आप बाहर जाके सैलेड खा रहे हो, इट डजंट मीन कि अच्छी है, राइट। आपका सैलेड किसने कौन सी कैसे तरीके से कौन से इमोशंस में कैसे बनाया है, बनाया है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत। चाहे आप वो सेम कुकुम्बर खा रहे हो, होटल में जाके खा रहे हो, और हम्म। सेम कुकुम्बर जो है वो आप अपने घर पे मम्मी ने जो आपको फ्रेशली सैलेड बना के खाया है, योर वाइब्स विल बी completely different। अनदर थिंग इफ वी विल टॉक अबाउट इज कि हमारे जितना आहार इंपॉर्टेंट होता है, उससे जो बेबी की बॉडी बनती है, उतना ही हमारे विचार भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। सो प्रेगनेंसी में द मॉम हु इज हैविंग अ वेरी हैप्पी माइंड, हैप्पी का मतलब ये नहीं है कि 24/7 आप हंसते ही रहो। हैप्पी का मतलब है इन वर्स्ट सिचुएशन यू आर एबल टू कीप योर माइंड एट अ गुड स्टेबल जोन।
सपोज प्रेगनेंसी आपकी है, बट आप प्रेगनेंसी में सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 24/7 आपको खुश रखेंगे, बट इट्स योर ड्यूटी, योर हस्बैंड्स ड्यूटी, योर फैमिलीज ड्यूटी कि आपको एटलीस्ट वो सारी चीजों से दूर रखे जो आपके लिए काम की नहीं है। अच्छी स्पिरिचुअल बुक पढ़ो, आप एक फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जहाँ पे आप रात को अच्छी मेमोरीज शेयर कर रहे हो कि ये उसके पहले ये हुआ था दादाजी के साथ, जब वो ब्रेव थे, जैसे वो आर्मी में गए थे, या वो डॉक्टर थे, या वो इंजीनियर थे, तो उनकी लाइफ ऐसी थी, मम्मी ने ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो आपको ये सारी मेमोरीज जब याद करती है तो ब्रेन में एक अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड वो जो है वो प्रेग्नेंट गर्ल को बहुत हेल्प करते हैं टू हैप्पी, टू स्टेइंग हैप्पी। बट उतनी जितना मदर हैप्पी रहती है, काम रहती है, वो हैप्पी हार्मोन्स के थ्रू बेबी जो है वो उसके न्यूरोसेल्स कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग होते हैं, एंड वो बच्चा जो है वो बहुत हेल्दी आता है एंड हैप्पी भी आता है। कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द गर्भ संस्कार इज ओनली वन। सी जनरल बेबी होता है ना, वो क्लेवर और शांत दोनों एक साथ नहीं होते। आपने देखा होगा जो क्लेवर बच्चे होंगे ना, वो सारी चीजें एक्सप्लोर करने में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट ओनली विद द गर्भ संस्कार इंटेलिजेंट बच्चा, सबसे शार्प बच्चा बहुत शांत भी होता है। क्यों? क्योंकि वो मेडिटेशन उसने मम्मी ने जो किया था इन द वूम, तो वो उस पे भी इफेक्ट होती है। जितनी शांत मम्मी होती है प्रेगनेंसी में, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन की भी बहुत एक्टिविटीज होती है जो आप कर सकते हो। जो सारे एक्सपेक्टिंग कपल्स है वो साथ में अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े, स्पिरिचुअली अच्छी प्लेसेस पे जाए जहां से आपको अच्छी एनर्जीज मिलती है, एंड डेफिनेटली वर्क ऑन योर फिजिकल बॉडी एज वेल। बिकॉज अगर आपको छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, बैक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, इन सबको भी आपको डील करने के लिए आपको प्रीनेटल क्लासेस ज्वाइन करने चाहिए। बिकॉज आजकल कैसा है कि प्रीनेटल क्लासेस इज ऑल अबाउट ओनली एक्सरसाइजिंग, इट्स नॉट लाइक एक्सरसाइजिंग, आपको योग करना है। हम प्रोनाउंस उसको कैसे करते हैं? योगा, yoga. यस, English version यस, of yoga योग, is यस, yoga. जो So हमारे Yog went to US and became yoga and yes, came back. यस, तो अभी हम बहुत अवेयर है योगा के लिए, राइट, बट इट्स नॉट योगा, इट्स द योग। योग मीन्स द कनेक्शन ऑफ द माइंड एंड द बॉडी। हम यहाँ पे बैठे हैं बट हमारा ब्रेन, Bringing that हमारा equilibrium. डेफिनेटली, तो हमारा बॉडी और हमारे माइंड की कितनी जो डिस्ट्रैक्शंस है उनको दूर करके हम एक साथ में अलाइन होके अगर अपने बॉडी के अंदर अपनी अवेयरनेस को ला पाए, अपने ब्रीदिंग पे थोड़ा सा वर्क कर पाए, तो प्रेगनेंसी जो है वो बहुत अच्छी जाती है। आप एक्सरसाइजेस करो, आप मेडिटेशन करो, आप चैंटिंग करो, आप जर्नलिंग करो, ग्रेटिट्यूड जार बनाओ। आजकल हम कभी थैंक यू बोलना सीखते, जनरली फॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, बट ऐसे हम डीपली हार्ट से, सोल से कब किसको थैंक यू बोलते हैं? वी आर नॉट इनटू द जोन कि जब हम डीपली किसी को हग करके या किसी को नोट्स लिख के थैंक यू बोले, राइट? सो वो भी वो बहुत तो चला इम्पोर्टेंट गया है दैट, वो पूरा चला गया है कि भाई सिस्टम। लोग लिखें या कुछ किसी, क्योंकि वी हैव व्हाट्सएप नाउ, यस, वी हैव ईमेल्स टू राइट, तो वो जो हाथ से लिखा हुआ होता है उसका कुछ फीलिंग इमोशन भी अलग होता है। तो हैविंग दैट इमोशन, दैट इज व्हाई वी डू जर्नलिंग ना, कि यस, भाई यू आर कनेक्टिंग विथ समथिंग yes, I फॉर always योरसेल्फ और फॉर recommended एनीथिंग, the व्हेन यू first, एक्चुअली पुट थिंग्स डाउन. yes, first activity once anyone joined to my classes, I always ask them is to make the gratitude jar। एक अच्छा सा बढ़िया सा जार लो, उसको अच्छे से डेकोरेट करो एंड हैव वन शीट एवरी डे, राइट एनीथिंग। इट कैन बी अ स्मॉलेस्ट थिंग लाइक योर मदर मेड द good raita for you। So that way anything, one good thing which you will write, keep on writing daily during the pregnancy। तो बेबी जो है, आजकल के बच्चे जो कंप्लेन करते हैं ना, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास गेम जोन नहीं है, हमारे पास अच्छे फोन नहीं है, टैब्स नहीं है, सो ये सारी कंप्लेन करने की अगर हमें हैबिट नहीं चाहिए, एंड कंपैरिजन की भी हैबिट हमारे बेबी में नहीं चाहिए, तो वी नीड टू राइट अ ग्रेटिट्यूड Grateful नोट एवरी डे, सो दैट द बेबी विल लर्न कि हाँ अच्छी एक्टिविटीज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में, very राइट? very. So as we talk about अच्छी activities and doing so many things for baby, how important it is to कि भाई सेल्फ केयर भी तो कितना important होता है एक मदर के लिए, खुद के लिए, कि कुछ चीजें जो हम खुद के लिए कर रहे हैं ना ही बेबी के लिए कर रहे हैं ना ही फैमिली के लिए कर रहे हैं,
but pampering your own self, taking care of your own इमोशंस, योर ओन, यू टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ठीक है, शायद कोई और मुझे ट्रिगर कर सकता है, पर अगर मैं मेरा सेल्फ वर्क करूं या अपनी सेल्फ केयर करूं, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद Yes, ले रही हूँ, as इंस्टेड we ऑफ have talked अदर्स. about, नहीं तो लाइक वी स्पीक इन स्पोकन अबाउट थेरेपी कि भाई वी ऑलवेज फील दैट द अदर पर्सन इज ट्रिगरिंग मी, ये मुझे ऐसे कर रहा है, वो मुझे ऐसे कर रहा है, बट taking your own responsibility, many times when we do our self work we realize it was about us and not others. yes, डेफिनेटली जितना प्लानिंग फेज में थेरेपी हेल्प करती है या सेल्फ केयर हेल्प करता है, स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मदर जो अपने फेवरेट कपड़े नहीं पहन सकती, अपनी फेवरेट प्लेस पे नहीं जा सकती, अपना फेवरेट खाना नहीं खा सकती, सो उन सबको अपने लिए जो उनके टाइम के अकॉर्डिंग, उनके डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग जो सारी अच्छी चीजें वो कर पाए, अगर अपने ब्रेन में कुछ स्टक है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इफ शी फील too high or too low in any emotion, she can definitely take the help of some instruments, some अच्छा से म्यूजिक बजाओ, अगर उनको लगता है तो अच्छे थेरेपिस्ट की हेल्प लो, अगर उनको लगता है तो अच्छे मेडिटेशन की हेल्प लो, अगर उनको लगता है तो सिंपली आप नेचर में जाके बैठो, नेचर हील्स एवरीथिंग, आप बढ़िया से अपने आप से कनेक्ट करो, आपने जैसे बताया ना बच्चे के लिए ना फैमिली के लिए, कुछ ऐसा वक्त जिसमें ना म्यूजिक हो ना स्क्रीन हो ना बुक हो, कुछ नहीं, जस्ट यू आर सिटिंग फॉर योर ओन सेल्फ, you are just having a good cup of any of your favorite drink, and just आप उसमें शेक पी सकते हो, आप हेल्दी कोई प्रोटीन भी पी सकते हो, बट आराम से बैठो, आजकल टाइम ही नहीं है हम सबके पास कि हम आराम से बैठ के कुछ चीजें खा रहे या पी रहे, वी आर जस्ट इन द हरी, ये फिनिश करो फिर वो करो, ये करो फिर ब्रेक वो करो. लेना, यस, ब्रेक तो लेना सेल्फ केयर इम्पोर्टेंट है उतना ही. प्रेगनेंसी में आई ऑलवेज गिव वन वीकेंड एक्टिविटी टू ऑल माई गर्ल्स, कि एक एक्टिविटी वीकेंड पे ऐसी करो जो 1-1.5 घंटे की हो, आराम से बैठो, अपने लिए बैठो, अपने सेल्फ से कनेक्ट करो, बिकॉज इफ यू आर कनेक्टेड विथ योर सेल्फ यू विल बी एबल टू कनेक्ट विथ एनी वन, अग्री, राइट. सो अग्री, आपका अग्री. कप अगर फुल है इम्पोर्टेंट हैप्पीनेस का, देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव समथिंग टू एनी वन. to others. Agree, agree. So यस. true. So as we move ahead, how important are yogic practices in how do they really help in the postpartum journey, do you सी think? पोस्टपार्टम जर्नी जो है वो बहुत ट्रॉमेटिक होती है कंपेयर टू द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी आई ऑलवेज से टू माय गर्ल्स, एंड वो बहुत हंसती है, दैट्स लाइक प्रेगनेंसी इज काइंड ऑफ पीरियड, यू गॉट द एंगेजमेंट एंड बिफोर यू गेट द वेडिंग, राइट. तो हमारी शादी होने से पहले जो सारी फैंटेसी वाली जो सारी चीजें होती है, दैट इज द प्रेगनेंसी काइंड ऑफ थिंग, अगर मेडिकल कंडीशन अच्छी है, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो. बट एक्चुअल मूवी विल स्टार्ट आफ्टर द शादी के बाद सब पता चलता है, सेम काइंड ऑफ थिंग. पोस्टमार्टम जर्नी बहुत डिप्रेसिव, बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है, ऐसा नहीं कि हर किसी की होती है, but the moms who suffered from the postpartum depression, I have seen many girls who went deep down into the depression, they need therapies, they need medication, they need lots of counseling. इतना ट्रॉमेटिक हो जाती है वो जर्नी कि they are not able to even hold their own baby, they are not even able to eat something. सो इतना ट्रॉमेटिक हो जाती है. अगर नॉर्मल लाइफ की बात करें आफ्टर पर द बेबी, शायद अगर कोई अपना प्री वर्क करता है, अपना सेल्फ केयर बहुत स्ट्रांग रखा है 9 months ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, काफी अच्छी हैबिट्स उन्होंने बिल्ड की है, तो शायद वो जर्नी इजी हो सकती है. डेफिनेटली विद सी 3-4 चीजें न्यू मॉम को हमेशा चाहिए होती है, मे बी कितनी ही स्ट्रांग या स्पिरिचुअल गर्ल क्यों नहीं हो, पहली वाली बात सपोर्ट फ्रॉम द हस्बैंड. जैसे ही बेबी होता है ना, हमारी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सब आपके बारे में पूछेंगे, बच्चा कैसा है वो कोई नहीं पूछता है, सब आपको पूछेंगे कैसा था, सोनोग्राफी कैसा था, अल्ट्रासाउंड कैसा था, दवाई खाई तुमने, खाना खाया, एक्सरसाइज की, मेडिटेशन किया, बुक रीड की. बट द मोमेंट यू डिलीवर द बेबी, आप कहीं पिक्चर में ही नहीं हो, सब आएंगे बेबी से मिलेंगे, बेबी के लिए गिफ्ट लाएंगे, बेबी की केयर करेंगे, बेबी बेबी ऑल इज लाइक पूरा वर्ल्ड जो है वो बेबी के लिए हो जाता है. सराउंड one हो of जाता the है. reason about the postpartum blues or the depression is the only the mother जो है वो पूरा detachment लोनली feel करती है कि फील करती है. हाँ कि इट्स सो मच लोग. ऑफ बॉडीली चेंजेस, हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, एंड ऑल्सो आई थिंक डिलीवरिंग अ चाइल्ड, बॉडी गोज इन अ ह्यूज शॉक. very
वेरी यू कैन से कि ये जो हमारा पूरा प्लेसेंटा जहां से निकलता है वो पूरी बड़ी सी हमारी डिनर प्लेट होती है, उतना बड़ा वुंड होता है जिसको हील होने में 40-50 डेज लगता है, और कंप्लीट हील होने में ऑलमोस्ट 9 to 12 months लगते हैं। वेदर इट्स अ नॉर्मल डिलीवरी और सीजर डिलीवरी में थोड़ा सा कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा टाइम लगता है, बट अगेन कंप्लीट हीलिंग होने में 9 से 12 महीने लगते हैं। जब पूरा यूट्रस श्रिंक हो जाता है, आप अगर पोस्टनेटल एक्सरसाइज करते हो उससे हेल्प कर सकते हो, आप योग सारे करते हो तो आप हेल्प कर सकते हो, आप सिंपल सी ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हो आफ्टर द डिलीवरी, देन डेफिनेटली वो जो है धीरे धीरे आपको हमेशा, चाहे नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सीएस है, आपको स्लो एंड स्टेडी रिकवरी के लिए जाना चाहिए। 40-50 डेज कंप्लीट रेस्ट, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट बी विथ योर बेबी, just eat, feed and sleep. That's the only three things you need. Other than that, if I can, whenever I am able to connect with the husband of the girl or the family person, I always advise, ये मदर जो है चाहे वो सेकेंड टाइम मॉम हो थर्ड टाइम मॉम हो, बट हर बार वो एक नई माँ बनती है। इट्स नॉट लाइक कि आपका तो भी एक्सपीरियंस है ना, दूसरी बार है तीसरी बार है, कहाँ पहली बार, बट अगेन एवरी चाइल्ड विल गिव यू अ न्यू एक्सपीरियंस। सो उसके लिए एक न्यू मॉम की केयर होना, उसको सपोर्ट करना, उसको फिजिकली जैसे बहुत सारे पेन्स हो रहे होते हैं तो आप उनके पाँव पे मसाज कर दो, अगर सीजर वगैरह है तो आप उनको उठने में भी बहुत दिक्कत होती है तो आप जस्ट थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड दोगे, सपोर्ट। शी विल फील लव्ड, शी विल फील केयर। उसको सपोर्ट की जरूरत होती है ना उस टाइम पे, तो वो अगर हम नहीं देते इसीलिए हैं। आई थिंक यूजुअली द फर्स्ट डिलीवरीज इन आर इंडियन कल्चर यस कि भाई माँ के घर पे चले यस जाओ, यस क्योंकि पता है कि वहां पे ज्यादा अटेंशन मिलेगा। यस। इट्स नॉट दैट नाउअडेज थिंग्स आर चेंजिंग, ऐसा नहीं है Even कि this also mentioned हाँ, in our Shastras, हम्म, whenever a lady will deliver the baby, she has to deliver in her own house, not in the Maika. Because हम्म, she always care, कि सबकी ध्यान रखना, सबकी care करना throughout the life. But this is the time when she need her own family to take care केयर of ऑफ हर। her, for the baby। नया changes है, चाहे मम्मी को फीड करवाने में आप हेल्प करो, आप उसको बेबी देने में हेल्प करो, बेबी के डायपर चेंज करने में हेल्प करो, अगर उसके आगे बच्चे हैं या फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड उसकी केयर करने में आप उसको हेल्प करो, आप उसको अच्छा फ्रेश फूड दे दो। बहुत सारे आजकल पोस्टनेटल प्रोडक्ट्स होते हैं जो रेडी मिलते हैं, आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में अगर हम नहीं बना पा रहे तो ऐसी सारी चीजें अगर न्यू मॉम को मिलती है, शी जस्ट नीड योर अटेंशन, योर टाइम फॉर 40-50 डेज। बाद में तो शी विल बी एबल टू फिगर आउट के यार हाँ अभी पता चल गया कि बेबी ऐसे सोता है। Slowly, body will also, get used यस to the new यस। change. सो फर्स्ट Body, 40 mind, 40-50 days आर वेरी क्रूशियल, फिजिकली also इमोशनली। क्योंकि sleep is, in such a bad place when यस the baby is delivered, क्योंकि आपका एक 5 hours या 6 hours का proper sleep तो हो ही नहीं रहा है, and sleep डेफिनेटली plays नॉट such an important role फॉर टू in टू our थ्री own years it won't be wellness. there। हाँ। So at that time for the sleep I always suggest कि जब बच्चा सोता है ना तब सो जाओ। गर्ल्स प्रेगनेंसी में ये कंप्लेन करती है कि यार बच्चा तो सो जाएगा, हमें नींद कैसे आएगी, हमारी तो वो हैबिट ही नहीं है। बट द मोमेंट यू फीड द बेबी आपके ब्रेन में से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको भी रिलैक्स करते हैं, एंड वो ही हार्मोन बेबी में जाते हैं एंड उसको सुलाते हैं, राइट। सो दिन की ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसमें अलग कॉम्पोजिशन होती है, एंड रात की फीडिंग है उसमें भी अलग होती है। सो अगर आप वो आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आपका कौन सा टाइम सूटेबल है, आप बेबी को अच्छे से मसाज करो, अच्छे से चेंज करो, कपड़े वपड़े चेंज करवाओ, अच्छा सा डीम लाइट करके अच्छा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दो। बच्चे को नहीं पता है दिन कौन सा है रात कौन सा है, बट अगर आप पूरे दिन में अच्छे से थोड़ा एक्टिव टाइम रखते हो और रात के टाइम पे कंप्लीटली डिम लाइट करके रोज एक ही रूटीन फॉलो करते हो, तो विद इन 4-5 वीक्स बेबी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ अभी दिन जो है उसमें हम उठ सकते हैं, हम खेल सकते हैं, नॉइज होता है, रात का टाइम हमें सोना है। सो द मदर एंड द बेबी फर्स्ट 40 डेज में अगर साथ में सोते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में सारी चीजें करते हैं, बच्चा अलाइन हो जाता है कि हाँ अभी ये टाइम पे हमें सोना है, हमें ये टाइम पे उठना है, अभी ये टाइम है तो हमें फैमिली वाले मिलेंगे, ये टाइम है तो हमारे साथ कोई खेलने वाला होगा, अब सनलाइट होगी, हमें बाहर जाना है, झूले पे बैठना है। तो आई ऑलवेज एडवाइज न्यू मॉम्स के आप पूरा दिन एक ही रूम में नहीं स्पेंड करो। दिन का टाइम है, आप बाहर वॉक करने के लिए नहीं बोल रहे, बट आप बेल्कनी में जाओ,
थोड़ी सी फ्रेश एयर लो, आप कहीं बाहर थोड़े से रूम के बाहर निकलो, अपनी खुद का ध्यान रखो, एटलीस्ट दिन में एक बार रेडी हो जाओ, चाहे आप सुबह शाम रात कभी भी, बट एक बार अच्छे से हेयर खुद कॉम्ब के करो। लिए भी रेडी करो आप, यस, आप मेक और अच्छे से, टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। अगर उस टाइम पे बच्चे का ही सिर्फ करने में खुद को अगर भूल गए तो यस, देन दैट विल ट्रिगर योर इमोशनली इम्पैक्ट, या माइंड। इमोशनली इम्पैक्ट योर माइंड। डेफिनेटली, सो वंस इन अ डे गेट योर सेल्फ रेडी, अच्छे से लिप बाम लगाओ, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखो, और जो सारी नेसेसरी चीज है ना वो उसको अपने पास ही रखो। मेंटल हीलिंग के लिए सबसे अच्छा काम ये होता है कि अगर हमारे आसपास क्लटर अच्छे से ऑर्गेनाइज चीजें होती है तो वी फील वेरी हैप्पी, वी फील काम। और सेम टाइम पे अगर हमारे आसपास ही सारी चीजें बिखरी पड़ी है, हम खुद ही बिखरे पड़े हैं, तो वी आर नॉट फीलिंग गुड। सो एटलीस्ट वंस इन अ डे गेट योर सेल्फ रेडी, have bath regularly, have massage regularly if that's possible around your आपके घर पे अगर कोई आ सकता है जो आपको अच्छी सी मसाज दे सकता है। जितनी इम्पोर्टेंट न्यूबॉर्न की मसाज होती है उससे कई इम्पोर्टेंट न्यू मदर की मसाज होती है। सो अच्छा। विद द हेल्प ऑफ दैट, यूजिंग द गुड आयुर्वेदिक हर्बल ऑयल जो बहुत अच्छे आते हैं, जो मदर को अच्छे से रिकवरी में हेल्प करते हैं। बहुत आयुर्वेदिक काढ़े आते हैं, या यू कैन से जो डिटॉक्स वाटर्स आते हैं जो हेल्प करते हैं मदर को सारे उनका जो यूट्रस है उसको अच्छे से क्लींस करने में, डिटॉक्स करने में, अच्छे से जो पूरा सारा प्रोसेस हुआ है उसकी हीलिंग के लिए बहुत सारे आयुर्वेदिक ऐसे रेडीमेड थिंग्स आती है जो आप पी सकते हो। आपको अगर पोस्ट नेटल सारे, जैसे हमारे ट्रेडिशन में बहुत सारी चीजें हम खाते हैं ना, लड्डू खाते हैं, गोंद के लड्डू, मेथी के लड्डू, बरियाली वगैरह, अगर हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ऐसे डिटॉक्स वाटर पियोगे, देन ऑल्सो इट विल बी हैविंग गुड इम्पैक्ट इन योर हीलिंग जर्नी, योर रिकवरी जर्नी। बिकॉज अगर बॉडी हमारा ठीक है तो माइंड भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है हमें कि टू हील द फिजिकल बॉडी। अगर हमारा बॉडी ठीक नहीं है तो हम और ट्रिगर हो जाते हैं। सो सेम वे आफ्टर डिलीवरिंग, taking care of the mother is very important, by husband, by family member, आसपास के जितने हेल्प कर सके, जितना उसको प्यार दे सके, जितनी उसकी केयर कर सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप हेल्प सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द रोल ऑफ सपोर्ट ग्रुप्स हियर? जैसे कोई सपोर्ट ग्रुप्स, जैसे आजकल मदर्स का, बहुत सारे मदर्स का सपोर्ट ग्रुप होता है फॉर प्रीनेटल, प्रेगनेंसी, पोस्टनेटल, तो हाउ हाउ मच डू यू थिंक कि वो हेल्प करता है? क्या वो इट्स करता भी लाइक, है? अगर हम एक फेज में हैं और हमें सेम लेवल वाले इंसान मिलते हैं तो वी फील हैप्पी। अगर मैं जैसे मेरी बात करूं कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना तो हमें आसपास बहुत सारी कोई ना कोई तो प्रेग्नेंट गर्ल एक दिन में, पूरे दिन में मिल ही जाएगी, बिकॉज अवर टेंशन इज ऑन दैट साइड, एनर्जी, राइट? हमारी यस, एनर्जी ऐसी है। यस। सो अगर हम प्रेगनेंसी में, न्यू मॉम की जर्नी में अगर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे प्रीनेटल क्लासेस ज्वाइन करते हैं, ऐसे पेरेंटिंग ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, तो हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, जहाँ पे लोग जजमेंटल नहीं है, जहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हैं, जो भी तरीके से वो हेल्प कर पाए। आपको काउंसलिंग स्पेशली ऐसे चाहिए, लोग जो शायद न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, या फिर डेफिनेटली, ऐसे लोग जिनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो यस, उसमें सपोर्ट ग्रुप बिकम्स अ वेरी एसेंशियल थिंग, आई दे थिंक। फील लाइक वेरी उनको ऐसा लगता है कि हाँ कोई तो ऐसे लोग हैं जो मेरे जैसे हैं, जो जजमेंटल नहीं है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो मदर इन लॉ या मदर की हम बात करें, तो जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरी डॉटर जो है द न्यू वन इज लाइक कि आप उसको फेस पे कुछ भी ओढ़ाओगे ना तो शी इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। शी विल बी एबल टू ओपन हर आईज विद, इवन इफ शी विल बी इन द डीप स्लीप। उसके लिए मेरी मदर इन लॉ व्हेनेवर शी कम शी कीप ऑन हैविंग दैट हैबिट, इवन फॉर माय मदर आल्सो। नहीं नहीं, बच्चा है, न्यूबॉर्न है, उसको उड़ा के रखो, उसको उड़ा के रखो। बट द मोमेंट शी गॉट द ब्लैंकेट शी इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। सो उसकी आंखें खुली जाती है। सो इवन दो दे मे हैव 4 5 6 इवन 8 चाइल्ड, बट दिस इज माय चाइल्ड, ओनली आई नो व्हाट्स हर हैबिट, हाउ शी फील्स कंफर्टेबल। विंटर चल रहा है, सारे बच्चे फुल स्लीव पहनते हैं, बट माई डॉटर इज नॉट कंफर्टेबल विद द फुल स्लीव, सो आई एम नॉट मेकिंग हर वेयर इट, बिकॉज इफ आई मेक हर वेयर द फुल स्लीव, that only I will be able to catch it, right, as a तो mother. आई थिंक ऐसी सारी बातों में सपोर्ट ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, बहुत वेर रोल यू होता कैन है, डिस्कस yes, कि भाई व्हाट आर अदर मदर्स गोइंग स्पेशली थ्रू, अगर व्हाट आर हम अदर ओल्ड किड्स, एज की व्हाट इज बात देयर करें, जर्नी। यस, तो उनके रिचुअल्स अलग होते थे।
यहाँ की आज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग वो शायद कैरी करना वो एडवाइजेबल नहीं होगा। पहले के जमाने में लोग बच्चे को काजल लगाते थे, यहाँ टीका लगाते थे, यहाँ लगाते थे, बट अभी केमिकल वाले काजल है, कहाँ अच्छे काजल है। पहले लोग पाउडर लगाते थे बहुत सारे यहाँ पे गले में, अंडर आर्म्स में, बट अभी बहुत सारी स्टडीज ऐसा बता रही है कि अगर आप बेबी पाउडर भी यूज करते हो देन ऑल्सो बेबी मे गॉट द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फ्रॉम द न्यू बॉर्न। सो ये सारी चीजें हमें पता ही नहीं है। पहले के जमाने में फर्स्ट हनी देते थे, अभी आजकल के हनी कितने प्योर है वो हमें कहाँ पता है, राइट। सो हमें ये दो जनरेशन के बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए एक मिडिल पर्सन की जरूरत होती है। एंड यहाँ पे सपोर्ट ग्रुप हेल्प करते हैं, जो चाइल्ड बर्थ एजुकेटर्स होते हैं, जो प्री नेटल क्लासेस चलाते हैं, जो काउंसलर होते हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं टू मेक मदर इन लॉ, मदर, सिस्टर इन लॉ, उन सबको समझाने के लिए कि ये जो आप सारे रिचुअल्स आपके जमाने में सही थे, राइट, आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग सही थे, आज के जमाने में दैट्स नॉट गुड फॉर द बेबी, नॉट फॉर द न्यू मॉम। सो उसकी वजह से भी शायद मम्मी जो है वो डिप्रेशन फील करती है, बहुत स्ट्रेस फील करती है। अगर वो नहीं मानेगी तो जो हमारे घर वाले वो बुरे मान जाएंगे, और अगर वो मान लेती है तो इवन व्हेन शी नो कि हाँ यार नहीं सही है, तो शी फील गिल्टी। सो ये दोनों ही चीजें होती है। सो इसके लिए सपोर्ट ग्रुप बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ पे आप क्लियरिटी आपको मिलती है कि आपको कौन सी चीजें आज के टाइम के अकॉर्डिंग देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, पानी आपको कब देना है, आपको हनी देना है कि नहीं देना है, आपको सॉल्ट एंड शुगर कब देनी है। तो ये सारे सपोर्ट ग्रुप बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। मेंटली दे फील वेरी हैप्पी, कनेक्टेड विद ईच अदर, सॉल्विंग नॉर्मल डेली लाइफ इश्यूज। जैसे अगर बच्चे को बिस्किट खिलाए कि नहीं खिलाए, बच्चे को आइसक्रीम खिलाए कि नहीं खिलाए, सो सपोर्ट ग्रुप डेफिनेटली एक यू कैन से कि मदर को एक बूस्ट देता है। दे विल हैव बैक ऑफ माइंड के हाँ कोई तो है जो हमारे क्वेश्चंस को डेली आंसर कर पाता है। ओके, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर आपको अगर कोई पूछे कि भाई व्हाट आर द टॉप 3 मिथ्स अबाउट द पोस्ट नेटल जर्नी, जो हमारे इतने ट्रेडिशन से और जनरेशन से आ रहा है, तो वो क्या हो सकता है? सबसे पहला तो पानी मत पियो। अगर पानी हम नहीं पियेंगे तो यार डिहाइड्रेशन हो जाएंगे, बिकॉज मेरी मम्मी मेरी ऐसा कोई मिथ है? यस मुझे नहीं पता था। ज्यादा पानी नहीं पानी मत पियो? पिलाते थे आफ्टर अच्छा, डिलीवरी। दे आर नॉट अलाउइंग द न्यू मॉम टू हैव मोर वाटर, बिकॉज बट अगर ऑलरेडी योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड, तो अगर पानी बट नहीं पिया दे तो फिर? फील कि अगर ज्यादा पानी पियोगे तो आपका पेट फूल जाएगा, यू विल अच्छा, फील लाइक अ प्रेग्नेंट अगेन इवन आफ्टर यू विल डिलीवर। वो अच्छा। हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो डिपार्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारा टमी फूला हुआ होता है। इवन आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी अ मदर विल लुक्स लाइक 6-7 मंथ प्रेग्नेंट। सो वो पानी की वजह से नहीं होता है। सेकेंड बिगेस्ट मिथ आई कैन से इज कि जब प्रेग्नेंट मॉम जो होती है उसको कहीं टच नहीं करने देते। पहले के जमाने में न्यू मॉम को एक अलग रूम में रखते थे एंड उसके अंदर बहुत सारी आयुर्वेदिक चीजें इन्वॉल्व होती थी कि वहां वो गोबर का नीपन वाला रूम होता था, इसके लिए उसको अलग रखते थे, उसको अच्छा खाना मिले, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे उसके। अभी आज हम सब जहाँ एक ही घर में रह रहे हैं वहां पे पॉसिबल ही नहीं कि मदर एक रूम में रह पाए। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि यार आप एसी एंड फैन नहीं कितने चलाओ। सारे मदर्स वर्किंग होती है, तो उनको शायद वो ट्रॉमा दे वो और भी वैसे बिजनेस में है तो उनको थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा, तो दे यस हैव टू स्टेप आउट। Yes, even most of the families are not allowing new mom and the baby to use the AC and the fans. उनको ऐसा लगता है बहुत गर्मी में रहो, बट बहुत गर्मी में रहने से रैशेस हो जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं स्किन रिलेटेड। और मदर क्योंकि जो उस जिस टाइम जमाने में इतना ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगा ना यस जितना ग्लोबल वार्मिंग अब है। डेफिनेटली, और वो टेम्परेचर भी इतना हाई नहीं था, राइट। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि न्यू मॉम को जो है नॉर्मल खाना नहीं देते। डेफिनेटली आई ऑलवेज एडवाइज न्यू मॉम कि आप जितना हो सके उतना ऑयल जंक सारी चीजें अवॉइड कीजिए। बट वंस इन अ वेल इफ यू विल हैव आइसक्रीम, वंस इन अ वेल इफ यू विल हैव योर फेवरेट फूड, इट वोंट मेक एनीथिंग टू योर बेबी। आप थोड़ा बहुत खाओ, अगर थोड़ा आपको खुद को पूरा भी खुश पिज्जा खाना कर है, सकते हो आप। यस आप ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी पे हो, पूरा पिज्जा मत खाओ, जस्ट हैव अ 1 or 2 बाइट, राइट, हैव अ हाफ स्लाइस।
सो उस तरीके से मदर सेटिस्फाई भी फील करती है, एंड उसको भी पता ही है कि व्हाट इज गुड फॉर द मॉम एंड द बेबी। सो ये सारी चीजें जो है वो बहुत वियर्ड होती है। न्यू बॉर्न को काजल लगाना जबरदस्ती, आजकल के काजल में नहीं अच्छी क्वालिटी के होते, चाहे कितने ही ऑर्गेनिक हो जाए फिर भी। आप न्यू बॉर्न को घिस घिस के वो आलमंड खिला रहे हो, आप न्यू बॉर्न को पानी पिला रहे हो, तो ऐसे तो बहुत सारे पोस्टनेटल के मिथ्स है जो कहीं ना कहीं न्यू मॉम्स फील करती है। एंड आई गॉट लॉट्स ऑफ मैसेजेस फ्रॉम द न्यू मॉम्स के यार ये करे कि नहीं करे। मोस्टली मेरी मदर इन लॉ 3rd महीने से उसको आलमंड घिस के खिला रही है, क्या करूं मैं। एंड बेबी गॉट लॉट्स ऑफ रैशेज, मे गॉट लॉट्स ऑफ डायरिया, बिकॉज आलमंड जो है उसका जो तासीर होता है वो गर्म होता है। सो 3 मंथ्स ओल्ड बेबी जो होता है उसका बॉडी रेडी ही नहीं है वो डाइजेस्ट करने के लिए। तो रैशेस होना, डायरिया होना, वॉमिटिंग होना वेरी कॉमन। सो हमें समझना पड़ेगा कि लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, हमें अभी की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए। नहीं समझ आ रहा है, पीडियाट्रिशियन को प्लीज कंसल्ट कीजिए 6 महीने से पहले। नो वाटर, नो घसारा, नो गुत्थी, न हनी, न कुछ ही नहीं। 6 महीने के बाद भी 1 साल तक मदर को बिल्कुल फोर्स ना कीजिए कि बच्चे को सॉल्ट एंड शुगर वाला खाना खिलाइए। बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मेरा बेटा 6 महीने के बाद खाना खाता था ना, तो मैं उसको खिचड़ी खिलाती नहीं थी, उसको मैं खिचड़ी पिलाती थी। वाई? अभी ये खिचड़ी पिलाना जो सुनेंगे उनको लगे खिचड़ी कैसे पीते हैं, बट आई यूज टू मेक अ वेरी सेमी लिक्विड काइंड ऑफ खिचड़ी। आई ब्लेंड इट, आई स्टेन इट, एंड आई मेरे बच्चा जो है वो वैसे पीता था। क्यों? क्योंकि इफ दैट बेबी विल गेट इवन अ सिंगल पीस ऑफ द राइस, he started having a vomiting. सो इसकी वजह से आप अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट समझो। मदर इन लॉ बोलेंगी कि हमने भी तो सॉल्ट शुगर खा के ही आपको बड़ा किया है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सो उस टाइम पे मदर को सपोर्ट की जरूरत है। उस टाइम पे ब्लड प्रेशर, वो डायबिटीज वगैरह नहीं था, आजकल के जमाने में है। और अगर हम आजकल का उसको खाना भी तो अलग है ना, तब का शुगर और यस सॉल्ट शायद इतने अडल्टरेटेड नहीं थे जितने सात आज के जमाने में। अगर 7-8 महीने का बच्चे ने एक बार शुगर खा लिया, हल्का सा आइसक्रीम चख लिया, तो आपको क्या लगता है वो दोबारा नहीं मांगेगा? कब तक कंट्रोल करोगे? तो जब तक 1-1.5 साल का होने तक अगर आपके कंट्रोल में है तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिए। आगे हमें नहीं पता कि कौन कौन सी बीमारियां आएंगी, एंड उसकी वजह से फिर कैसे हम हील करेंगे, वी हैव नो आइडिया। राइट? आज से 25-30 साल पहले थायराइड, बीपी, ये सारी जो बीमारियां थी वो नहीं कॉमन थी, बट अभी तो नी रिप्लेसमेंट इज वेरी कॉमन। राइट? सो हमें वो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आई ऑलवेज से फैमिली का सपोर्ट के बिना न्यू मॉम जो है या टॉडलर की मम्मी जो है वो नहीं सरवाइव कर पाएगी। तो प्लीज सपोर्ट द न्यू मॉम। आई ऑलवेज से यहाँ पे भी अगेन सपोर्ट ग्रुप बहुत हेल्प में आता है। Thank you so much, Masmi, for थैंक यू सो मच। enlightening us on the prenatal journey, planning, and the pregnancy journey and the postnatal thing. We are very glad that you joined us today and shared so much of knowledge. कितनी सारी नई बातें जानी about therapy, about wellness, about pregnancy. Really looking forward to connect with you again. Thank you so much for having me here and giving me the opportunity to share my thoughts with you. Thank you so much. Have a good day. Good day. Bye bye. Bye.